نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ ماہ محرم الحرام یہ ان اشہر حرم میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی اور تعداد ہے وہ 12 ہے۔ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ محرم الحرام ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک جو اس مہینے کے اندر حکم ہے اور امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے جو فعل ثابت ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس ماہ محرم الحرام کے اندر مختلف کام کیے جاتے ہیں اور مختلف چیزوں کا رواج پایا جاتا ہے۔ مثلا ماہ محرم الحرام کے اندر لوگ قبرستان میں خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کو جاتے ہیں، قبروں کو پکا باندھتے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو لپائی وغیرہ قبروں کی جاتی ہے، اور بہت سی باتیں اس ماہ محرم الحرام کے اندر کی جاتی ہیں اور افعال جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج ایک ایسا حکم بتانے لگا ہوں کہ جو اس ماہ محرم الحرام سے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں صرف ایک ہی وہی عبادت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے جو نفلی عبادت ہے، سنت عبادت ہے۔ باقی فرائض وغیرہ جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، ہر روز کی بنیاد پہ جو نماز فرض ہوتی ہے، لیکن اس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے اور اس مہینے میں جو پیغمبر علیہ السلام نے جس عبادت کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ صرف ایک کام ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ کے حکم کی پیروی، دوسری ہے شیطان کی عبادت اور شیطان کے حکم کی پیروی۔ اب اگرچہ یہ دوسری چیز جو ہے شیطان کی عبادت اور اس کے حکم کی پیروی یہ لذیذ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کے جو بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی عبادت میں اس سے کہیں زیادہ لطف اور مزہ آتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی بھی عبادت ہو جائے اور ساتھ ساتھ شیطان کا بھی حکم مان لیا جائے، مگر یہ ان کی کم فہمی ہے۔ دونوں کو راضی کرنے سے شیطان تو راضی ہوگا مگر رحمان راضی نہیں ہوگا۔ اگر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، شیطان بھی راضی ہو جائے، دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر شیطان تو راضی ہوگا لیکن رحمان راضی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک تو اس سے راضی ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے مقتضیات پر عمل کریں، کسی کو اس کی عبادت میں
शरीक न करें। और शैतान अल्लाह की इबादत छुड़वाना नहीं चाहता। शैतान अल्लाह की इबादत छुड़वाना नहीं चाहता। शैतान का कतअन मकसद ये नहीं है कि इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मिन कुल्लिल वजूद छोड़ दे, बल्कि वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि कुछ उसकी भी इबादत की जाए और कुछ ना कुछ उसकी भी मान ली जाए। बहरहाल इन दिनों के अंदर मुहर्रमुल हराम में सुन्नत से तो सिर्फ एक इबादत साबित है। माह मुहर्रमुल हराम के अंदर सुन्नत से सिर्फ क्या है, एक इबादत साबित है। ये मेरे पास मुस्लिम शरीफ है, इसमें सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफजलुस सियाम, रोजों में सबसे अफजल बाद रमजाना, रमजान के बाद शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह तबारक व तआला के महीने मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं। रोजों में सबसे अफजल और बेहतर रोजे रमजानुल मुबारक के बाद शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह तबारक व तआला के महीने मुहर्रमुल हराम के हैं। व अफजलुस सलाते, और नमाजों में सबसे अफजल बादल फरीजते, फर्ज नमाज के बाद सलातुल लैल, रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है। अब ये एक हदीस, और दूसरी हदीस में, अब इस हदीस में तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजीलत बयान फरमाई है कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के रोजों के बाद सबसे अफजल जो रोजे हैं वो इस महीने के हैं, यानी माह मुहर्रमुल हराम के हैं। और ये दूसरी रिवायत बुखारी और मुस्लिम के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से वो फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामा, रोजा रखा, यौम आशूरा, आशूरा का यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। व अमर बिसियामिही, और हुक्म दिया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 मुहर्रमुल हराम के रोजा रखने का। और इससे आगे एक दूसरी रिवायत मुस्लिम के अंदर आती है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया अन सियाम यौम आशूरा, आशूरा के दिन के रोजे के मुताल्लिक, तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, युकफ्फिरु सनतल माज़ियता, ये आशूरा का रोजा जो है गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। पिछले जितने भी इंसान के माजी के अंदर गुनाह होते हैं, पिछले साल के माजी में जो गुनाह किए हैं इंसान ने, गुनाह सगीरा, अल्लाह तबारक व तआला की जात इस माह मुहर्रमुल हराम के रोजे को उन गुनाहों का कफारा बना देते हैं। अब समझें, आशूरा का रोजा रखने का पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म क्यों फरमाया? खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजा रखा, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमर बिसियाम ही, इस दिन के रोजा रखने का हुक्म भी दिया। अच्छा जी, वामर बिसियाम, इस दिन के रोजे रखने का हुक्म फरमाया। एक दूसरी रिवायत में आता है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो यहूदियों को इस दिन का रोजा रखते हुए देखा, तो उनसे पूछा कि इस दिन की क्या खुसूसियत है कि तुम रोजा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि यह बड़ा अजीम दिन है, इसी दिन में हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी थी, और फिरौन और उसकी कौम को पानी में गर्क किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर शुक्र के इस दिन का रोजा रखा था, इसलिए हम भी इस दिन का रोजा रखते हैं। उस वक्त इमामुल अंबिया पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बनिस्बत हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज्यादा करीब हैं। चुनाचे इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा
और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रोजा रखने का हुक्म दिया। उलमा इकराम फरमाते हैं इब्तिदा के अंदर आशूरा का रोजा रखना जो था ये वाजिब था, मगर जब रमजान के रोजे की फर्जियत हुई तो आशूरा के रोजे का वजूब जो है ये मनसूख हो गया। अच्छा जी, तो अब ये देखो कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद आशूरा का रोजा रखा और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को रोजा रखने का हुक्म दिया। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आशूरा के दिन का रोजा जो है ये माजी के गुनाहों का कफारा बन जाता है। कितनी बड़ी फजीलत है। एक और रिवायत में है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इस दिन तो यहूद भी रोजा रखते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी जिंदगी हुई तो आइंदा साल मैं नामी का रोजा भी रखूंगा। तो अब उलमा इकराम फरमाते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो उस महीने जो अगला साल है उसके आने से पहले रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए। तो उलमा इकराम फरमाते हैं अब सिर्फ आशूरा का रोजा नहीं रखना, 10 मुहर्रमुल हराम के साथ एक और रोजा मिलाना है, नामी 10वीं का या 10वीं और 11वीं का, ताकि उन यहूद के साथ मुशाबहत ना आए। तो बहरहाल मेरे इन रिवायात बयान करने का मकसद ये है कि इस माह मुहर्रमुल हराम में जो सुन्नत से इबादत साबित है वो सिर्फ आशूरा का रोजा है। 10 मुहर्रमुल हराम नामी 10वीं और 10वीं 11वीं का जो है वो रोजा सिर्फ साबित है, बाकी और चीज कोई साबित नहीं है। अगर और कोई चीज खास तौर पर इन दिनों के अंदर दूसरों के साथ मुशाबहत करते हुए काम किया जाएगा तो फिर ये वईद है और दीन पर ज्यादती है। अल्लाह तबारक व तआला की जात ने किसी और हुक्म इस महीने में कोई और हुक्म नहीं दिया। ये मतलब नहीं है कि फर्ज नमाजें जो है उनका हुक्म नहीं दिया, वो तो अपनी जगह पर है। जो इबादतें हैं मसलन रमजान के महीने के रोजे हैं, इसी तरह ईद का दिन है, अय्याम तशरीक है, तो इस तरह इस महीने के अंदर जो हुक्म सुन्नत से साबित है वो सिर्फ आशूरा के दिन का रोजा है। अब आप तवज्जो करें जरा, एक बात इंतहाई अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि 10 मुहर्रमुल हराम के अंदर हम कितने मुसलमान हैं जो इस सुन्नत पे अमल करते हैं कि जो रोजा रमजान के रोजों से पहले, रमजान के रोजों की फर्जियत से पहले जो वाजिब था, हम फिर बाद में सुन्नत हो गया, उसका वजूब मनसूख हो गया, तो हम कितना एक लोग इस हुक्म पर अमल करते हैं। तो हमें चाहिए कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर काम करें, बजाय इसके कि हम अपनी तरफ से जो है बिदआत जो है या अपनी तरफ से कोई रसूमात करते रहें जिनका पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से सबूत भी ना हो। अल्लाह ताला हमें